My name is Benu. So today we'll be discussing a chapter from our Invitation to English Book 1. So the name of the chapter is The Cancer Fight from Hiroshima to Houston. It's been written by Ritsuko komaki. Before starting, so please hit the like button and subscribe, and please praise my efforts because it's take a lot of time to make such kind of video. So please make sure to hit the like button. Thanks a lot. Let's start the video. Let us start the chapter The Cancer Fight from Hiroshima to Houston. So this is written by Ritsuko komaki. Let's just start by introducing the author. Dr. Ritsuko komaki is a radiation oncologist at MD Anderson Cancer Center in Houston, USA, and is also an advocate of proton therapy. So what is meant by oncologist? So oncologists are the special doctors who are responsible for the cure and treatment of cancer. So a doctor who studies about the cancer treatment are said to be oncologists. So oncologists कहाँ है? तो डॉक्टर एंडरसन कैंसर सेंटर में वो एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं जो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं. So it is in USA, and she is also best as an advocate of proton therapy. So what is proton therapy? So proton therapy is nothing but जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सो ये बॉम्बार्डमेंट होता है जो कैंसरस सेल के ऊपर डाला जाता है, एंड दिस इज हाउ द कैंसर सेल्स आर गेटिंग ट्रीटेड. सो दिस इज द प्रोटॉन थेरेपी. सो दिस इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल एक्सरेज होता है. ये एक्सरेज टाइप का होता है, और जो एमआरआईज होता है और जो सीटी स्कैन होता है, वैसे ही ये प्रोटॉन थेरेपी होता है जो रेगुलर बेसिस पे हम पेशेंट्स को देते हैं ताकि वो पेशेंट्स जो है उनका कैंसर सेल्स ठीक हो सकता है, उनका जो कैंसर सेल्स हैं वो किल हो जाएगा एंड वो ठीक हो जाएंगे. ठीक है, लेट्स मूव टू द यूनिट 1 ऑफ दिस चैप्टर. बिफोर वी मूव टू द टेक्स्ट, so we will little warm up regarding this particular chapter. So you must have already aware of the two atomic bombs that were bombarded on Hiroshima and Nagasaki in the year 1945. The first one was bombarded on 6th of August, and the second one was later bombarded on 9th of August in Nagasaki. The first one was in Hiroshima and the second one was in Nagasaki. So these atomic bombs have a very long kind of ailment. Bombs, they were nuclear bombs, right? So they will transmit a kind of rays that is actually harmful for the human body. They cause cancer and many different kind of disabilities in human beings and animals. So this is what people of Hiroshima and Nagasaki went through for a very long period of time. So this is what it has been displayed in this story, and how and what inspired our author to be in to study about radiations, to study about radiation related ailments, मतलब diseases. ठीक है, तो ये सारे diseases के बारे में उनको जो इच्छा जागृत हुआ वो कैसे जागृत होता है और क्यों इनको लगता है कि उसके ऊपर उनको कुछ काम करना चाहिए, और लोगों को जो है उसका हेल्प वो कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे बचा सकते हैं इस थेरेपी के द्वारा. ये जो पढ़ेंगे तो इनका जो इच्छा शक्ति है वो कैसे जागृत हुआ, ये इस हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टेक्स्ट है उसमें डिस्प्ले किया है, हमारे पोएट ने लिखा हुआ है इस चीज़ के बारे में. सो व्हेन ही सेज द लिटिल बॉय और द फैट मैन, मतलब द लिटिल बॉय वॉज ड्रॉप्ड ऑन अ सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन 6th of August, मतलब वो एक छोटा बॉम्ब था जो कि ट्रेलर था, तो उसको लिटिल बॉय से कंपैरिजन किया है. और जो फैट मैन है जो कि बहुत ही बड़ा एक बॉम्ब था, फैट मैन ओवर नागासाकी ऑन 9th of August. तो नागासाकी वाला जो बॉम्ब था वो तो भयानक था, राइट. 9th August को जो बॉम्बार्डमेंट किया गया दैट वाज भयानक. ठीक है, तो अभी हम जो है वार्म अप कर चुके हैं, एंड देन वी विल मूव टू द टेक्स्ट, द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी.
Ritsuko Komaki was living with her family near Osaka. So when the atomic bomb exploded on her native Hiroshima in 1945, तो 1945 में क्या हुआ, हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब गिरता है तो वो अपने फैमिली के साथ ओसाका में रहती थी. ओसाका एक छोटा सा एक सिटी है और एक टाउन यू कैन से विच इज़ वेरी नियर टू योर हिरोशिमा. तो बट द फैमिली रिटर्न टू द डिवॉस्टेड सिटी व्हेन शी वाज 4. तो डिवॉस्टेड सिटी हिरोशिमा में आते हैं कब, जब हमारे जो ऑथर है रित्सुको कोमाकी, तो शी वाज जस्ट 4 years old. कोमाकी ग्रू अप एट डिवास्टेड सिटी, मतलब जो ध्वंस विध्वंस सिटी होता है उसको डिवास्टेड बोलते हैं. एंड कोमाकी ग्रू अप अ विटनेस टू द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स which likely contributed heavily to the deaths of about half of her relatives including her father. तो कोमाकी जो है ये सारे माहौल में वो बड़े हो रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि कैसे उनका जो घर में बाकी सदस्य कैसे एक एक करके वो क्या है बीमार पड़ रहे हैं और उनका जो फादर का बहुत सारे रिलेटिव्स उनका डेथ कर जा रहे हैं और उनके पापा भी डेथ कर गए. क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो रेडिएशंस हैं, इस रेडिएशंस के वजह से जो है हमारा जो बॉडी सिक हो जाता है एंड देन अल्टीमेटली जब वो सेल्स को इफ़ेक्ट कर देता है तो बीमारियां हो जाती है. तो इंसान जो है वो क्रिटिकल हो जाता है और फिर वो मर जाते हैं. राइट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिरोशिमा एंड नागासाकी. शी इज़ विटनेसिंग एवरीथिंग. वो देख रहे हैं तो शी इज़ एबल टू लुक एवरीथिंग एंड दिस इज़ व्हाट hurts her a lot. So like many Japanese, she developed both a fascination with a fear of radiation. तो बहुत सारे जापानीज़ क्या कर रहे हैं, तो ही उनके मन में जो जापान में रहते हैं उनको जापानीज़ बोलते हैं. और फैसिनेशन मतलब एक इंटरेस्ट है और फियर मतलब डर भी है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ किलिंग लाइव्स ऑफ मैनी पीपल. राइट. एंड फैसिनेशन मतलब एक इंटरेस्ट है विच इज़ गेटिंग इनटू हर हार्ट. सो उसको रेडिएशन के बारे में जानना है. सो व्हाट इज़ देयर इन दिस रेडिएशंस. सो शी इज़ जस्ट very eager to learn about it. So when her close friend Sadako Sasaki died at age 11 of radiation-related leukemia, Komaki vowed to become a cancer doctor. तो when her friend, very close friend, जिनका नाम है सडाको सासाकी, जिनका मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं जब वो 11 साल के होते हैं, तब इनका जो मौत हो जाती है. सडाको सासाकी को जस्ट 11 साल हुए थे और कैसे मरे वो, रेडिएशन रिलेटेड लुकीमिया. जब वो रेडिएशन उनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, लुकीमिया डिजीज़ हो जाती है उनको. लुकीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, खून कम हो जाता है उनके शरीर में, तो इसीलिए उनका जो बॉडी है वो वीक हो गया और वो मर गए. तो ठीक है, तभी कोमाकी को, जो हमारे ऑथर है डॉक्टर रित्सुको कोमाकी को ने वोट मतलब शपथ, तो उन्होंने शपथ लिया कि वो एक कैंसर डॉक्टर बनेंगे ताकि और किसी का मौत वो सह नहीं सकते. तो इसीलिए तो उन्होंने एक शपथ लिया उसी दिन कि मैं अगर लाइफ में मुझे कुछ करना है तो मुझे एक कैंसर डॉक्टर बनना है. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. Right? So in case you have any doubt, you can drop a message in the comments box. So today, Dr. Komaki has learned how to apply the radiation creatively and no longer fears it. Instead, as clinical section chief and program director of the thoracic radiation oncology at the University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston. So she uses it in increasingly sophisticated ways to fight cancer. तो डॉक्टर कमाकी जो है अब जो है रेडिएशन स्पेशलिस्ट बन गया है. तो बहुत क्रिएटिविटी मतलब कैसे कर सकते हैं, इंटरेस्ट लेके बिल्कुल एक काम करना है, उसको बोलते हैं क्रिएटिव. तो हाउ विल अ पेशेंट बी क्योर्ड फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ एलिमेंट. उनके दिमाग में बस यही सारा चीज़ें हैं जो कि एक बहुत अच्छा है एक डॉक्टर के लिए. राइट. सो दिस इज़ व्हाट शी इज़ थिंकिंग रेगुलरली कि कैसे उसमें और एडवांसमेंट ली जा सकता है और एडवांसमेंट तरीके से मतलब पेशेंट्स को देखा जा सकता है ताकि पेशेंट जो है वो जल्दी क्योर हो
सकते हैं, एंड नो वन इज़ गोइंग टू डाई इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये उनका डेजिग्नेशन क्या है, शी इज़ अ क्लिनिकल सेक्शन चीफ, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि हमारा कैंसर है उस पर्टिकुलर सेक्शन का वो चीफ बन गए, और प्रोग्राम डायरेक्टर भी है। कहाँ का ना, थोरैसिक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। थोरैसिक रेडिएशन मतलब जो आपका पैसेज है विच कनेक्ट्स फ्रॉम योर माउथ टू योर फूड पाइप, सो दिस पैसेज इज नोन एज द थोरैसिक कैविटी। तो इसका जो है वो ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट है। कहाँ पे, द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर। तो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है जो कि कैंसर रिलेटेड जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कैंसर पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीट की जा रही है। दैट्स अ यूनिवर्सिटी एज वेल एज अ हॉस्पिटल काइंड ऑफ setup that is there in Houston, Texas, and it is in USA. So she uses it in increasingly sophisticated ways to fight cancer. So sophisticated in the sense very useful ways. So it is already there in your very advanced ways, that is in your glossary. You can just look at it, right? Sophisticated means advanced. So many advanced ways to fight cancer. She is one of the world's leading researchers and advocates of proton therapy, proton beam therapy. तो वो क्या है, तो शी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसर्चर्स, मतलब जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जो कैंसर के ऊपर रिसर्च करें, शी इज़ वन ऑफ देम। तो वो एक है उनके बीच में। और एडवोकेट, क्या एडवोकेट कर रही है, मतलब क्या प्रदर्शित कर रही है, प्रोटॉन रेडिएशन बीम थेरेपी। तो ये प्रोटॉन जो है वह सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो एक रेडिएशन के माध्यम से उस पर्टिकुलर कैंसरस सेल के पास हम डाल दे रहे हैं, उसके ऊपर हम उसके ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हम स्पेसिफिकली उनको ही टारगेट करेंगे जो कैंसरस सेल्स हैं। सो दिस इज एन इमर्जिंग ट्रीटमेंट दैट मेनी ऑन्कोलॉजिस्ट कंसिडर द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव अवेलेबल। तो बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दीज आर डॉक्टर्स दैट आर स्पेशलिस्ट इन कैंसर ट्रीटमेंट। इट इज ऑलरेडी देयर अ डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर, oncologist, right? So these most of the doctors consider that this is the safest and most effective way available. Safest मतलब बहुत ही सेफ तरीका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, बहुत मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो है पेशेंट्स ट्रीट हो जा रहे हैं, बहुत ही उम्दा काम कर रहा है, ठीक है, और लोग जो है वो सही तरीके से वो ठीक हो जा रहे हैं. सो दिस इज़ what makes Dr. Komaki happy. So because she has already vowed कि उनने शपथ लिया है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के ये सारे लोग जो रेडिएशन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको मुझे ठीक करना है. सो दिस इज़ व्हाट उनका जो लाइफ का अल्टीमेट एम था और वो इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं. तो and according to Komaki, her work is much better done in the context of a university program than at private institution. Komaki बोल रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी में जिस तरह का जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो पूरे यूएस में कहीं और ऐसे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या हॉस्पिटल हो उनमें ऐसे ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है. यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. तो मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. So our patients, including all of our proton patients, are treated under clinical trials which monitor results on large number of patients. She points out. ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं यहाँ पे कि हर जगह पे जो कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट दी जा रही है यूएस में, तो जहाँ पे भी प्रोटोन थेरेपी के माध्यम से पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया जा रहा है, सबसे यहाँ पे जो है उनके यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एंडरसन कैंसर केयर सेंटर में बहुत ही अच्छे तरीके से कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से दिया जा रहा है. सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल ट्रायल? सो क्लिनिकल ट्रायल मतलब ये है
कि आप जो है ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन में डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन में डाल देना भी पेशेंट्स के लिए बहुत ख़राब होता है। तो एक कंट्रोल्ड माध्यम से डाला जाता है, पहले थोड़ा सा ट्रीटमेंट दी जाती है, फिर उसका जो ट्रीटमेंट है रेगुलर बेसिस पे बढ़ाया जाता है, धीरे 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 बढ़ाया जाएगा। एंड देन उनका जो एडवांसमेंट है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट को, वो पहले नोट कर दी जाएगी। एंड ये नोट करने के बाद जो है उनका जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो शुरू करते हैं। तो ये जो है उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। सो ट्रायल बेसिस पे उसको जो है वो रिव्यू करा जाएगा, उनका जो प्रोग्रेस है, जो पेशेंट है उसको वो कैसे रिकवर कर रहे हैं, हाउ इज़ द पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द गिवन थेरेपी। सो दिस इज़ व्हाट द have to be undertaken first of all. So उसका जो अगर रिव्यू नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो हर दिन रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, हर दिन उसको रिव्यू करना हर एक पेशेंट के लिए। See for example, if the number of patients are more, so it is very difficult to actually follow up individually, right? So it is a very difficult task. But however, this this clinical center, that is Dr. Anderson Medical Center, is doing its best for every individual patients, individual care दी जा रही है सबको। तो it's difficult to treat patients on trials at private hospitals or clinic। तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के लिए? बिकॉज क्लिनिकल ट्रायल हर एक पेशेंट का लेना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। कहाँ पे? जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं। बिकॉज और भी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स तो एक पर्टिकुलर जगह पे दी जा रही है, बट हाउएवर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में और भी अलग अलग तरीके से पेशेंट्स होंगे, जैसे नर्वस सिस्टम रिलेटेड पेशेंट्स होंगे, न्यूरोलॉजी पेशेंट्स होंगे और उसके पेशेंट्स होंगे, राइट? सो दे हैव ऑल्सो द ड्यूटी टू टेक केयर अबाउट देम, बट दिस सेंटर स्पेसिफिकली ट्रीट्स द कैंसर रिलेटेड patients. So they don't have enough manpower and they don't have review boards that can check on compliance of eligibility and maintain strict quality control of treatment. तो ये बोल रहे हैं कि sufficient लोग वहाँ पे नहीं है, sufficient लोग नहीं है patients को देखने के लिए, जो मैन पावर है वो नहीं है। and they don't have review boards मतलब these big boards which is besides one patients, मतलब एक पेशेंट्स के साइड में एक बोर्ड मेंशन होगा जिसमें वो पेशेंट का हर एक रिकवरी स्टेटस वहाँ पे लिखा जाएगा। सो दिस स्टेटस बोर्ड्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस सेंटर and they can check on the compliance of eligibility and maintain strict quality controls of treatment। तो क्या है कि जो compliance है, compliance मतलब क्या है? तो compliance मतलब obedience है, guidance है, ठीक है, जो कि सारे rules and regulations को comply करेगा। comply मतलब to obey these rules and regulations। और eligibility and maintain strict quality control of treatment। तो quality वहाँ पे control कर दी जाएगी, quality किस तरीके से जो treatment दी जा रही है बेस्ट है या थोड़ा सा लोग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दी जा रही है। सो दिस क्वालिटी कंट्रोल कहाँ पे ज़्यादा है? मिस्टर एंडरसन केयर सेंटर में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अदर care centers in the US. So this means patients get better care here। तो इसका मतलब ये है कि patients यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे केयर कर दी जा रही है patients की, right? And they're able to recover much faster in this center as compared to the other centers in the US। तो recently awarded the Juan del Regato Foundation Gold Medal for the Best Educator and Teacher। तो हमारे जो ऑथर है डॉक्टर रित्सुको कोमाकी, वो एक बेस्ट एजुकेटर है, बेस्ट टीचर है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक बेस्ट बहुत ही अच्छा अवार्ड मिला है जो कि है जुआना डेल रेगाटो फाउंडेशन गोल्ड मेडल मिला है उनको, सो इन यूएसए। तो ये जो गोल्ड मेडल उनको मिला है हमारे ऑथर को, डॉक्टर कोमाकी को, so this is for a best educator and teacher। Educator in the sense she is getting as a kind of teacher, teaching all these things that she is
seeing in her patients. ठीक है, जो कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट वो दे रही है, उससे उसको उनको क्या सीख मिल रही है, ये और बाकी सब जो डॉक्टर्स हैं उनको बता रही है, और उनके जो भी कुलीग्स हैं, जो भी उनका कंपेनियंस है, उनसे शेयर कर रही है. सो इसीलिए उनको जो है ये गोल्ड मेडल मिला है, बिकॉज शी इज़ जस्ट वर्किंग आउटस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. तो उनका लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, कैंसर ट्रीटमेंट, दैट्स इट. तो एक जगह जब हमारा जो है केंद्रित कर देते हैं, देन सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम टू अस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम डॉक्टर कोमाकी, सो विच इज आवर राइटर. ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं. The higher education setting also allows Dr. Komaki to share her knowledge with future innovators. तो innovators मतलब यहाँ पे जो कि और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट के रिलेटेड, तो कैसे फर्दर इम्प्रूव हो सकता है. तो डॉक्टर कोमाकी जो डे टू डे बेसिस पे जो लर्न कर रहे हैं, जो वो सीख रहे हैं, तो उनको वो नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हैं, ताकि उनके भी जो में भी हेल्प हो सकता है, राइट. So this is what she is always keen to share knowledge with these innovators. So I try always to educate younger people, students and trainees as well as patients to live healthy life and achieve their goal to help others. तो क्या होना चाहिए? I try मतलब हमारे जो ऑथर है डॉक्टर कोमाकी, उनका हमेशा मकसद ये है कि जो यंगर पीपल है, मतलब वो जो आप जैसे यंगर पीपल जो कि मुझे सुन पा रहे हैं, तो उनको सिखाना है, तो उनको क्या करना है, एजुकेट कराना है. किसके रिलेटेड? ये जो ट्रीटमेंट है उसको कैसे हम डील कर सकते हैं, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं पेशेंट्स को. दिस इज व्हाट मेंटली जब आप प्रिपेयर हो जाते हो, देन एवरीथिंग यू कैन जस्ट you can cure yourself, right? So mentality is first of all required in anything. कोई भी चीज हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, यू आर एबल टू फाइट एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड. जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, तो इनको जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, एज वेल एज पेशेंट्स, मतलब पेशेंट्स को भी बता रहे हैं, एजुकेट करा रहे हैं कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं. पेशेंट को भी जानना चाहिए क्योंकि उसके बॉडी के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो जो कैंसरस सेल डेवलप हो चुका है उनके बॉडी में, उनके साथ वो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका फर्दर स्टेप क्या होगा आगे. सो दिस इज व्हाट शी इज आल्सो डिस्कसिंग विद पेशेंट्स. दिस इज वेरी गुड थिंग, राइट. सो लिव हेल्दी लाइफ. जो हेल्दी लाइफ है उनको जीना है, और जो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, दूसरों को मदद करना, दूसरों के बारे में भी सोचना. तो दिस इज व्हाट द अल्टीमेट गोल इन all of our life should be, to help others come out of whatever difficulty they are facing in their life. ठीक है, सो ये जो हेल्दी लाइफ जीने का जो थॉट प्रोसेस है, ये सब के अंदर वो डाल रहे हैं. हेल्दी लाइफ इज व्हाट nowadays is needed, and how to achieve our goal. So this is what she is trying to help with others. So this is what we will learn in this particular unit. So I think we should end up here, and then we'll cover up units in the other video. So we'll go through the glossary before ending the so leukemia is a type of cancer of blood और बोन मैरो. तो बोन मैरो ये होता है, जो बोन होता है हमारा, तो उसमें तो होलोज हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं, जो कि हड्डी को बिल्कुल दुर्बल कर देता है. दैट इज लुकीमिया. सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एडवांस तरीका. सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही एडवांस्ड तरह से हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो दैट इज सोफिस्टिकेटेड. डिवॉस्टेड मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरे तरह से ध्वंस हो जाना को बोलते हैं डिवॉस्टेड. जैसे आपका हिरोशिमा और नागासाकी जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो बम्बार्डमेंट किया गया था, तो वो completely ध्वंस हो गया था. ऑन्कोलॉजिस्ट आर अ डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर, एंड ओबीडियंस इज कंप्लायंस. कंप्लायंस मतलब आपका ओबीडियंस होता है. इनोवेटर मतलब हु इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज और थिंग, इनोवेट कर रहे हैं कैसे हम कैंसर ट्रीटमेंट को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इज व्हाट बीन इनोवेटेड एवरी नाउ एंड देन. सो डॉक्टर कोमाकी इज हेल्पिंग दीज इनोवेटर्स टू इनोवेट फर्दर. ठीक है, सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड. Thanks for watching this video. So people, please appreciate the video by hitting the like button and subscribing to my channel, because it's take a lots of effort to make such kind of videos. So please do that.